Good morning, dear students. Good morning, Gitanjali. Hello. Join with audio, children. Good morning, ma'am. Very good morning. Can you hear me properly? Good morning, ma'am. Good morning. Arpan? Simran. Simran, good Simran, morning. ma'am. Good morning, Yes, ma'am. Simran. Very good morning. Let us wait for 2 minutes for the students to join. Till then, I am going to give you introduction of the topic. We have started with aggregate demand and aggregate supply unit. And in that, what we have done? First of all, we have done the behavior of aggregate demand and aggregate supply curve. Both of them are dependent on the income. More income, more demand, aggregate demand will be there, and similarly more income, then we will have the more consumption. So income is coming out of the consumption and aggregate supply is equal to the income. And then we have done how equilibrium level of income and output is determined. Now we are going to start with the topic and how to raise employment level in the economy. We are going to use Keynesian economics here. Let us start with, we know that aggregate demand and aggregate supply, where these two are equal and their place level of equilibrium is decided. So this is the equilibrium level y0 or y1, we can say. This is y0 equilibrium level of income, output and employment. Now we want to raise the level of employment in the economy. What can be done? According to, there is a controversy between the classical economists and the modern economists. Classical economists say that if at any time there is unemployment in the economy, to increase it, wage cut is the method. We have already discussed. ये अच्छा मेथड नहीं है. क्यों? क्योंकि it is not just pull. किसी की सैलरी को कट करके हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नंबर ऑफ पर्सन्स एट वर्क बढ़ाएंगे तो वो जस्ट पुल नहीं है. इट इज नॉट एक्सेप्टेबल. So it is never used. So modern economists say that in order to increase aggregate demand should be increased. To increase the level of employment, level of income and employment को बढ़ाने के लिए हमें क्या चाहिए? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा. Keynes call it effective demand. What is the name? Effective demand must be raised. What about the aggregate supply? It is dependent on raw material, machinery, capital, equipment. These things cannot be increased in the short period. It is a short run phenomena. तो short run में हम ये चीजें बढ़ा नहीं सकते, तो सप्लाई तो फिक्स रहेगी. तो हमें क्या करना पड़ेगा? लेवल ऑफ इनकम आउटपुट बढ़ाने के लिए एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड बढ़ाना पड़ेगा. वो कैसे बढ़ाएंगे? इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन करके. ये कुछ पॉइंट्स लिख रहे हैं ना. इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन. पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट बढ़ा देगी. कौन बढ़ाता है? पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन करता है? गवर्नमेंट. पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा? मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर. गवर्नमेंट ऐसे ही पुल बनाना शुरू कर देगी, बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स बनाने से क्या होगा? लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. तो प्रमोटिंग और इनकरेजिंग कंजम्पशन, इंसेंटिव देना लोगों को, इनकरेजिंग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ताकि लोग कंज्यूम करें चीजें, उनको नए नए इंसेंटिव्स देना. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाना और इंक्रीज इनकरेजिंग एक्सपोर्ट्स. ये सारी चीजें जो है इनको बढ़ाने से एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगी. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि इजी लोन पॉलिसी बना देती है. बैंकों के थ्रू
आसानी से लोन मिलना शुरू हो जाता है, लोगों को होम लोन देते हैं, कई बार कंज्यूमर गुड्स के लिए भी देते हैं, फ्रिज लेना है, कार लेना है, टीवी लेना है, बुला बुला के जो बैंक वाले हैं वो कहते हैं कि लोन ले लो। क्यों? सो दैट कंजम्पशन इन द economy can be increased and level of income and output will be increased. Why? क्योंकि जब हम किसी चीज की डिमांड करेंगे, सर्कुलर फ्लो हमने पढ़ा है ना गीतांजलि? यस बेटा, सर्कुलर फ्लो के अंदर हमने क्या किया था कि जब किसी चीज की डिमांड ज्यादा होगी तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो नए लोग काम पे रखे जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा, फिर इनकम इंक्रीज होगा, तो ये सर्कुलर सिस्टम चलता ही रहेगा, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब एडी की जगह पे ये राइटवर्ड शिफ्ट हो जाए, एडी 1 हो जाए, तो ई की जगह पे इक्विलिब्रियम का लेवल E1 हो जाए, तो जो एम्प्लॉयमेंट का लेवल है वो Y0 की जगह Y1 हो जाए। तो दिस इज द न्यू इक्विलिब्रियम व्हेन AD rises from AD to AD1, so E1 is the new equilibrium where aggregate demand is equal to aggregate supply, OY1 is the level of income, output and employment. Is it clear? Yes सिमरन, बेटे आप म्यूट करके आप बोलते रहेंगे तभी हमारी क्लास जो है इंटरैक्टिव रहेगी, नहीं तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगी तो वो भी आपका चल जाएगा। अभी तो हम बात करना चाहते हैं एक दूसरे से। यस, इज इट अंडरस्टूडेबल? एम आई क्लियर? यस मैम आ गया समझ। हाँ जी, आगे चलिए। नेक्स्ट हमें काफी काम करना है आज कंप्लीट, जो मैंने डिसाइड किया हुआ है। फिर से देख लीजिए, सप्लाई फिक्स रहेगी क्योंकि रॉ मटेरियल, कैपिटल and we cannot increase such things in the short run, so we will increase the demand by raising capital formation, public expenditure, consumption expenditure को बढ़ाएंगे, exports को बढ़ाएंगे। So in this way the level of employment increase from OY0 to OY1, Y0 Y1 is the increasing, this is the increasing level of employment. You can see that I have written, and here I have written down all the things what I am taking on X-axis. Labeling is completed. Labeling को देख के आपको complete marks मिल जाते हैं एग्जाम में, इस चीज को ध्यान रखना। What is this known as ADAS approach? मैडम ने दोनों एक साथ लिख दिए हैं ताकि हम कंपैरिजन कर सके। बुक में ये दोनों अलग अलग हैं, थोड़े समय में हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट सिचुएशन। AD इज इक्वल टू C प्लस I, याद रखना है हमने। AS इज इक्वल टू C प्लस S। इफ AD इज इक्वल टू AS, C प्लस I is equal to C plus S, that is investment and saving, where these two will be equal, that will be the level of equilibrium in the economy, and level of income and employment Y0 सेम रख लेते जैसे इधर रखा ताकि हमारा कंपैरिजन इजी हो जाए। Now what happens? We are giving incentives and motivating the producers to invest more. They are investing more. So what happens? I जो है change हो जाएगा I1 में। So you can see very well that our equilibrium has shifted from E to E1. अब इस पॉइंट पे जो हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल है, इसको नीचे लेके आए। हमारा लेवल ऑफ इनकम जो है Y0 से Y1 हो गया है। This is known as increase in employment level. नेचुरल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इनकम भी हमारी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच में, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अंदर हम कहेंगे कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट शुड बी इंक्रीज्ड। तो जैसे ही ये राइटवर्ड शिफ्ट होगा, ये चेंज इन इन्वेस्टमेंट आएगा, एट द सेम टाइम income changes from
OY0 to OY1 level. Y0, Y1 is the increase in income and employment by both the approaches. This is given by Keynes. Keynes ने बोला है कि अगर हम किसी टाइम पे लेवल ऑफ इनकम आउटपुट इकोनॉमी में कम है उसको बढ़ाना चाहते हैं तो इफेक्टिव डिमांड को बढ़ाएंगे और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे. अरे भाई कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होगी. अगर डिमांड बढ़ेगी तो भी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी. अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो भी लोगों को काम मिलेगा. अरे पुल बनाएंगे तो कंट्रैक्टर को काम मिलेगा, वर्कर्स को काम मिलेगा, सीमेंट वाले को काम मिलेगा, बजरी वाले को काम मिलेगा. ठीक है, जो लोहे की चीजें चाहिए उसके लिए काम मिलेगा, ईंटों वाले को काम मिलेगा. बहुत ज्यादा जो है लेवल अप हो जाएगा इकोनॉमी में. तो कई बार तो गवर्नमेंट जरूरत नहीं होती तो भी काम करवाना शुरू कर देती है ताकि जो इकोनॉमी है उसमें लेवल ऑफ डिमांड जो है अप रहे. अकॉर्डिंग टू Keynesian economics, this is like this. So this we have done all about how to raise employment level in the economy. So any doubts in this? Other students has also joined, so they can unmute them, and if any doubt is there, you can ask me. Okay. Kiranjeet and Sandeep are also there. Yes. Anybody can ask any question. If any doubts are there, you can note down these figures and you need to practice these figures. कई बार ऐसे होता है कि हमें पता तो होता है बनाना कैसे है, लेकिन बनाते समय हमारे हाथ फ्रीक्वेंटली उतना फ्लो नहीं करते. जैसे कि मैडम ने यहाँ बिना किसी उसके बनाया है 45 डिग्री की लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर बनाई है. तो इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी able to draw it in a proper manner. This is the first topic which I have decided today to be done. Now, in the economy, whether there is full employment always? Yes. Gitanjali, can you say full employment India में है क्या? Yes, unmute yourself. Let us discuss something. No. What is here? What is found in Indian economy? Can you say? Unemployment is there? Yes, ma'am. Unemployment? Yes? Yes, ma'am. Disguised unemployment is there. जो हमें दिखाई भी नहीं देती वो वाली unemployment भी है इकोनॉमी में. ठीक है, तो इकोनॉमी के अंदर काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में पाई जाती है. एक पोस्ट अगर हम देखते हैं कि एक पोस्ट है उसके लिए 500 people are there and sometimes underemployment is there. We are able to do higher level job but we are getting a job below our qualification. Suppose a MA student is there and he is unable to get a job and he is तो उसको क्या करना पड़ रहा है? पीएन की जॉब करना पड़ रहा है. He is serving as a PM in any institution, in any forum or in any school. So that means he is underemployed. He is not getting job equivalent to his master degrees और his ability. अपनी ability से कम में अगर उसको job मिला है तो these are the conditions. We need to do this. That which kind of full employment is there? What do you mean by full employment level of income and output? Full employment level of income and output. What I will say that full employment is a situation. Full employment is a situation. एक ऐसी स्थिति है where all those who want to work at the prevailing rate of wages, where all those
who are ready to work at prevailing wage rate, जो आज चल रहा है उस रेट पे काम करने को तैयार हैं, सबको जॉब मिली हुई है। क्या मतलब है इसका कि आज जो रेट है किसी भी फर्म में एक टाइपिस्ट का या एक क्लर्क का मान लीजिए 20,000 रुपीज है, ठीक है, बट द पर्सन वांट्स दैट आई डोंट वांट 25,000, I want 28,000 rupees per month. So he is not unemployed according to economics. Full employment is a situation where all those who want ready to work at prevailing wage rate get the job. All those who are ready to work at the prevailing wage rate get the job, get the employment. So I have written down the definition in my words. You can also write, but it should be correct one. Okay, wording can be different, meaning should be same. Now I am coming to this. How full employment level can be depicted. We know it very well that 45-degree line is the aggregate supply line. This is the aggregate demand line. Here we are measuring aggregate DD, aggregate SS. Just see, I am labeling it. I am not, taking it to be. You will write it yourself. So you should also make a habit. मैं हमेशा लिखती हूँ, आप भी हमेशा लिखेंगे. अगर आज हैबिट नहीं डाली तो पेपर मेडिकल छूटने वाला है, मैं बता दूं, और इसके मार्क्स कटेंगे. Level of income and employment. So everybody must be very careful while labeling the figure. Where AD is equal to AS, according to AD-AS approach, E is the equilibrium and OY is the level of employment. EY is the level of aggregate demand. मैडम क्या लिखने लगे हैं? Just see. मैडम लिख रहे हैं एक्चुअल डिमांड. एग्रीगेट डिमांड कितनी है एक्चुअल? EY ऊपर से नीचे, ये देख लीजिए, एडी जहां पे कट करता है वहां ऊपर से नीचे ये एक्चुअल डिमांड है. रिक्वायर्ड डिमांड कितनी है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए? दैट इज आल्सो EY. Therefore this is full employment level. Full employment level. फुल एम्प्लॉयमेंट पे EY जो है एग्रीगेट डिमांड चाहिए और वही डिमांड पूरी है हमारी EY. तो दिस इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट. आप देख रहे हैं कि हम वही वाला यूनिट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला कर रहे हैं. पहले हमने इनकी शेप्स सीखी है कि ये ऐसे क्यों है. एग्रीगेट डिमांड जीरो लेवल पे भी है, क्यों है? हमें पता है कि मिनिमम कंजम्पशन हमने करनी ही करनी है फॉर फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. So we cannot avoid it. So this is starting from here. But aggregate supply curve is starting from 0 और 45 डिग्री की लाइन है. ये बिहेवियर है इनका हमने पढ़ा. फिर हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम लेवल. अब हम पढ़ रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है. Where aggregate demand is equal to aggregate supply and it is a situation where all those who want to work at the prevailing wage rate get the job. Am I clear? Yes, Kiranji? Beta, is it clear? Unmute yourself and speak. मैम ये सेकंड वाला समझाना, EY वाला रीगेट डिमांड वाला. हाँ जी, ये देखिए एडी जिस जगह पे कट करती है दैट इज एग्रीगेट डिमांड ना. यस मैम. ई से लेकर वाई तक ये डिमांड है. ई से लेकर वाई तक ये डिमांड है जो हमारी इसमें शो हो रही है जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है. उस पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे EY जो है एग्रीगेट डिमांड है और यही फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है. इसलिए दोनों इक्वल है. EY
इज इक्वल टू EY। कोई चेंज नहीं है, जहां एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट करती है, दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ठीक है। दूसरा जब हम बनाएंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम व्हिच इज फाउंड इन ऑल द इकोनॉमीज, दैट वी विल बी ड्राइंग आफ्टर दिस। ठीक है। नाउ इट इज क्लियर, EY is the full employment level. Should we start further? Yes, ma'am. Next. Now we are coming to this underemployment equilibrium. Underemployment equilibrium का मतलब है कि इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पहले ही आ जाए फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से, उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट level of equilibrium, underemployment level of equilibrium is a situation where those who are ready to work at prevailing wage do not get the job. Level of income and output. Underemployment is a situation where some resources remain unemployed. कुछ लोग अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, उसको अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि कुछ लोग जब अनएम्प्लॉयड रह जाए उसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहते हैं। टेक्निकली अगर हम बात करें जैसे पिछले में की थी, टेक्निकली ऑल दोज हु आर रेडी टू वर्क एट प्रिवेलिंग रेट डू नॉट गेट द एम्प्लॉयमेंट। उनको सभी को जॉब नहीं मिलती। देयर इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोग काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा। पहले हमने क्या कहा था, लोग इस रेट पे काम नहीं करना चाहते जो चल रहा है। जैसे अगर 20,000 सैलरी मिलती है तो वो चाहते हैं हमें 30 मिले। ठीक है, यहाँ पे ये है 20 मिल रही है, 20 में भी काम करने को तैयार है पर उनको काम नहीं मिल रहा। ठीक है, तो इसके लिए हम बनाने लगे हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को शो करने के लिए फिगर। फिगर तो वैसे ही बनाएंगे, लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। Okay, this is the x-axis, this is the y-axis. Here we are taking up aggregate DV, aggregate SS. मैडम ने इनको नाम दे दिए हैं AD, AS. So now AS is the aggregate supply curve. Now what happens? AD is the aggregate demand. ये पीछे भी यही बनाया था। This is the OY, EY. This is EY, is the full employment level. क्या लिख रहे हैं हम? Full employment level. क्या लिखना है? Required जो हमारी है एग्रीगेट डिमांड, दैट इज EY. यू कैन सी, यही हमने पिछले में किया था। अब क्या है, एग्रीगेट डिमांड तो नीचे है, ये है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इन द इकोनॉमी। लेवल होना चाहिए था ई पे इक्विलिब्रियम का, बट लेवल है कहाँ, इकोनॉमी में पहले ही आ गया E1। ये देखिए, इसका मतलब एक्चुअल तो ये है ना Y0 EY0। ठीक है, EY0 एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज EY0 और इसको FY0 भी कह सकते हैं, पैरेलल है ना FY।
ये क्या हो गया रिसोर्सेज y0 y1 अनइम्प्लॉयड रिसोर्सेज। इकोनॉमी में अनइम्प्लॉयमेंट जो है वो किसके इक्वल हो गई y0 y के। ये y0 और ये y लिया है हमने, y0 y के इक्वल हो गई, ये अनइम्प्लॉयमेंट। देख लीजिए फिर से, रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड चाहिए कि EY हैगी है, FY डेफिशिएंसी कितनी है EF की, ये कमी है हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, फिर से देख लीजिए दोबारा से, मैम आपको बना के क्लियर कर देती है इसको ताकि आपको दिक्कत ना आए। फिर से देख लीजिए दोबारा से। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर going to draw the same picture which we have already drawn. Suppose this is the aggregate demand curve, इक्विलिब्रियम का पॉइंट ये है, ये हमने OY लेवल जो है फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो चाहिए हमने OY रखा है। इज इट क्लियर? ये फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है जो होना चाहिए, बट इन द इकोनॉमी डिमांड कर्व इज लेस than the required. This is E1. इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पहले ही आ गया। ये क्या हो गया y0, ये क्या है अनइम्प्लॉयड रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिली, ये अनइम्प्लॉयमेंट है। y0 y अनइम्प्लॉयड रिसोर्सेज है। मैंने क्लियर करने के लिए दूर बना दिया ताकि आपको दिखाई दे जाए। पहले इक्विलिब्रियम का पॉइंट है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के लिए OY होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था EY होना चाहिए था, बट हैगा कितना है E1 और Y। ये है कितना है E1 Y 0, E1 Y 0, ये Y0 है, E1 Y 0 चाहिए कितना था EY1 EY और हैगा कितना है E1 y0। तो नेम तो आप कोई भी लिख सकते हैं, एम नोट व्हाटएवर इट इज, बट जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है उससे पहले अगर इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम आ जाए उसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इसी ओके नाउ मैंने इसको एफ का नाम दे दिया है और EF मैंने शो किया है कि ये डिमांड में कमी है हमारी। EY जो है हमारा क्या है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, FY इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है, EF जो है हमारी डिमांड में कमी है। इतनी डिमांड और होनी चाहिए तब जाके फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल हमें मिलेगा। इज इट क्लियर? बेटे पूछना है कुछ पूछ लीजिए, हेसिटेट ना करिए। हम दोनों फिगर दोबारा से बनाते इसका कंपैरिजन कर सकते हैं। स्पीक आउट। यस गीतांजलि? यस बेटा, टाइम हो गया है नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, मैं फटाफट आपको ये दोनों फिगर दोबारा से बना के दिखा देती हूँ कंपैरिजन में, ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या किया और उसमें क्या किया है। दोनों में डायग्राम पहले तो दोनों की सेम ही बनी है। जस्ट सी फुल एम्प्लॉयमेंट के और 2 मिनट्स आई विल टेक अप। X axis, Y axis. Here as well, we are taking up X axis, Y axis, AD, AS. This is AS, AD, AS. This is AS. Okay. So this is the AD. Here also. This is the AD. Here is E, here is E. Here is level of income and output. दोनों को बराबर बना रही हूँ। इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट दोनों में यही है। ये देख लीजिए, ये है हमारा OY1, EY1 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, दोनों को EY लेवल ले लीजिए, सिमिट्री में आ गया है।
ये फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है, फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों में यहाँ तक सेम है। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, दिस इज आल्सो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इज इट क्लियर नाउ? इजीली यू कैन वेरीफाई, ये दोनों में सेम है। अब क्या है, इसमें तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, EY ही एक्चुअल है, EY ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे EY चाहिए है नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का लेवल जो है वो कम है, ये है 81 और ये है E1, ये इतना कम है, यानी कि इक्विलिब्रियम पहले ही आ गया इकोनॉमी में। तो ये क्या शो कर रहा है, E1 Y1 क्या शो कर रहा है, ये वाला resources are unemployed, unemployed resources, तो अनएम्प्लॉयमेंट Y1 है, ठीक है। एक्चुअल क्या चाहिए हमें, एक्चुअल डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हमें चाहिए EY, ठीक है, ये हमें चाहिए, रिक्वायर्ड है हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए। और एक्चुअल कितनी है, एक्चुअल है EY1, तो इन दोनों का गैप जो है अनएम्प्लॉयमेंट को शो करता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट को शो करता है। अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज Y1 Y है और इधर रिक्वायर्ड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एक्चुअल एग्रीगेट, यहाँ पे दोनों का नंबर है। There is no problem, that means EY is equal to EY, लेकिन यहाँ EY और EY1 इक्वल नहीं है, फिगर में भी दिखाई दे रहा है। अब क्लियर हुआ? That's all for today. If any doubts or queries are there, you can put in the WhatsApp box as well. And if you want to ask, you can ask me. Okay? Yes, Gitanjali, now it is clear. I have made the comparison. Yes, दोनों ma'am. फिगर सेम बना के I have tried my level best to tell you. If you need, I can explain it again as well. Tomorrow we can discuss it again, your queries. Yes? Okay. Any Okay. doubts are there, you can ask me. Okay? No, ma'am. It's okay. Then that's all for today. Thank you. Have a nice day, children. Bye.